SA 570 going concern. So scope of this essay deal with auditor's responsibility in audit of the financial statement relating to going concern and the implication for the auditor's report. तो इस essay अपने को क्या बताएगा कि गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड देन ये जो गोइंग कंसर्न है इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा ऑडिटर्स के रिपोर्ट पे. ओके, सो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं. सबसे पहले अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द नियर फोर्सिएबल फ्यूचर. ओके, अभी देखिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेसमेंट करे कि एंटिटी है वो फ्यूचर में गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा. तो देखिए इसके बारे में ऐसे क्या बोलता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. और मालूम है आपको ये तभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट टू डू सो. ओके, मैनेजमेंट असेसमेंट of the entity ability to continue as a going concern involve making judgment, okay, at a particular point in time about the inherently uncertain future outcome of the event or condition. जैसे कि degree of uncertainty associated with the outcome of the event or condition, size and complexity of the entity हो गया, nature and condition of the business हो गया. okay, अभी what is the responsibility of the auditor. तो देखिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding and to conclude on the appropriateness of management use the going concern basis of accounting. तो ऑडिटर को क्या करना रहता है, sufficient and appropriate audit evidence लेना रहता है और ये कंक्लूड करना रहता है कि जो मैनेजमेंट यूज कर रही है कि appropriateness of the management use of the going concern basis of accounting वो राइट है या नहीं है. To conclude based on the audit evidence obtained whether the material uncertainty exists about the entity ability to continue as a going concern. okay, these responsibility exists even if the FRF used in the preparation of financial statement does not include an explicit requirement for the management to make a specific assessment of the entity's ability to continue as a going concern. और एक बात याद रखो, अगर जो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने ऐसा बोला कि मैंने गोइंग कंसर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये गारंटी नहीं है इस बात का कि फ्यूचर में बिजनेस चलते ही रहेगा. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ SA 570 देखिए क्या बोलता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज. सो देखिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या बोलता है, व्हेन परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर रिक्वायर्ड बाय SA 315 द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर द इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट दैट मे कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट on the entity's ability to continue as a going concern. आगे, in doing so, the auditor shall determine whether the management has already performed a preliminary assessment of the entity's ability to continue as a going concern. तो देखिए इसका दो आउटकम आ सकता है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट मारा है गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में और दूसरा मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं मारा है. अगर जो मैनेजमेंट असेसमेंट मारा है तो क्या, if an assessment has been performed the auditor shall discuss the assessment with the management and determine whether the management has identified the event or condition that individually or collectively may cast the significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and if so the management plan to address them. okay, दूसरी साइड अगर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं मारा है तो if such an assessment has not yet been performed the auditor shall discuss with the management the basis for the intended use of the going concern basis of accounting and inquiry of the management whether the event or condition exists that individually or collectively may cast the significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. okay, आगे, the auditor shall remain alert throughout the audit for the audit evidence of the event or condition that may cast the significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. okay, evaluating the management assessment of going concern. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अगर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट मारा है गोइंग कंसर्न का तो हमको देखना पड़ेगा वो प्रॉपर है कि नहीं है.
तो देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करेगा, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट मारा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न पे है, उसका असेसमेंट करेगा, इवैल्यूएट करेगा ऑडिटर। अभी क्या बोल रहा है देखिए, ये इवैल्यूएशन के लिए ऑडिटर सेम पीरियड लेगा जो मैनेजमेंट ने लिया है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इन इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, द ऑडिटर शैल कवर द सेम पीरियड as that used by the management to make it assessment as required by the principal, क्या बोलता है, as required by applicable FRF or by law or the regulation if specified as a longer period. Okay, आगे क्या बोला जा रहा है, अगर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करते समय गोइंग कंसर्न को 12 महीने से कम का पीरियड लिया है तो देखिए क्या किया जाएगा। If the management assessment of entity's ability to continue as a going concern cover less than 12 months from the date of financial statement, the auditor shall request the management to extend its assessment to the period at least 12 months from that date. तो क्या बोलता है कि मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि आप असेसमेंट में कम से कम 12 महीने का लेकर के असेसमेंट करो पीरियड। ओके, इन इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट द ऑडिटर शैल कंसिडर whether the management assessment include all the relevant information of which the auditor is aware as a result of the audit. तो अभी क्या बोलता है कि जब भी ऑडिटर ये असेसमेंट मारे, इवैल्यूएशन करे, तो वो ये भी देखेगा कि भाई जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में, जब भी मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न का, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट मारा है गोइंग कंसर्न का, उसका इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट। और क्या बोल रहा है, दूसरी बात, जो ऑडिटर से वो सेम पीरियड लेगा असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए जो मैनेजमेंट ने लिया है। तीसरी बात, अगर जो मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम पीरियड लिया है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो उस केस में ये जो ऑडिटर है मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप फिर से असेसमेंट मारो कम से कम 12 महीना लेकर के। फिर चौथी बात में क्या बोला जा रहा है कि ऑडिटर ये भी देखेगा कि ऑडिटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन मिले विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, वो सभी इंफॉर्मेशन को गोइंग कंसर्न असेसमेंट करते समय एंटिटी ने कंसीडर किया है या नहीं किया है। ओके, अगला क्वेश्चन, पीरियड बियॉन्ड द मैनेजमेंट असेसमेंट। जो मैनेजमेंट असेसमेंट के बाहर का पीरियड है उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, द ऑडिटर से इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एज टू इट्स नॉलेज ऑफ द इवेंट और कंडीशन beyond the period of the management assessment that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. तो क्या बोलता है कि भाई ऑडिटर को उसके रिस्पेक्ट में भी इंक्वायरी करना चाहिए कि जो पीरियड का असेसमेंट आपने नहीं किया है क्योंकि वो बियॉन्ड गया, देन व्हाट द पीरियड यू हैज टेकन फॉर असेसमेंट, सो इन दैट केस मैनेजमेंट आप ये बताओ क्या उसमें आपको कुछ सिग्निफिकेंट डाउट लग रहा है कि उसके रिस्पेक्ट से भी उसके वजह से कोई गोइंग कंसर्न पे डाउट आ सकता है, तो मुझे वो बताओ। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन आर आइडेंटिफाइड। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑडिटर का क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर होगा जब ऑडिटर को कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए दैट मे क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो वहां पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। द प्रोसीजर शैल इंक्लूड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना चाहिए ऑडिटर को, व्हेन वेदर द मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू परफॉर्म द सेम, इवैल्यूएट मैनेजमेंट प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शन, वेदर द आउटकम ऑफ द प्लान इज लाइकली टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड वेयर द मैनेजमेंट प्लान आर फोर्सिएबल इन द सर्कमस्टांसेस, whether entity has prepared a cash flow forecast. Okay, then consider whether the additional facts or information have become available since the date on which the management made the assessment. Request the written representation from the management and where appropriate TCWG regarding their plan for the future action and for feasibility of those plans. So देखिए यहाँ पे क्या कवर किया गया बेसिकली। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं मारा है तो बोलो ऑडिटर कि वो असेसमेंट मारे। दूसरी बात, अगर जो फ्यूचर प्लान क्या है मैनेजमेंट का, अगर जो कोई सिग्निफिकेंट डाउट है तो उसका प्लान क्या है, उसको मिटिगेट कैसे करेंगे रिस्क को,
तीसरी बात, कैश फ्लो फोरकास्ट आपने बनाया है क्या, और कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है क्या, जो अजम्पशन है वो एडिक्वेट है क्या आपका। देन एडिशनल फैक्टर्स और इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट कर रहा है डाउट उसको भी मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है क्या, असेसमेंट किया है क्या। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, दैट प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शन फिजिबिलिटी ऑफ दोज प्लान, की भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप इसके बारे में दे दो कि जो गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप रिजॉल्व कैसे करने वाले हो, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन द इवेंट और कंडीशन आर आइडेंटिफाई। देखिए यहाँ पे और भी कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि हम एनालाइज एंड डिस्कस कर सकते हैं कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट। फिर से और क्या देख सकते हैं, एनालाइज एंड डिस्कसिंग कर सकते हैं इस पॉइंट पे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देन हम लोग रीड कर सकते हैं द टर्म्स ऑफ द डिवेंचर और लोन एग्रीमेंट। देन हम लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ सकते हैं, अब द शेयर होल्डर हुआ, TCWG हुआ, उसके बाद रिलेवेंट कमिटी फॉर द रेफरेंस टू द फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज। ओके, इंक्वायरी ऑफ द एंटिटी, लीगल काउंसिल का हम इंक्वायरी कर सकते हैं। देन द कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस, लीगैलिटी और द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, अभी देखिए ऑडिटर कंक्लूजन्स, अभी अपने ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किया, अभी देखिए ऑडिटर कंक्लूजन। तो ऑडिटर का एक कंक्लूजन क्या हो सकता है, एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर व्हेन द इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर मारा गया है क्या, जब इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है गोइंग कंसर्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है और दूसरा एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट adequately disclose the principal event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and the management plan to deal with those event or condition and disclose clearly that there is a material uncertainty relating to event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and therefore that it may be unable to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business. Okay, दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, adequacy of disclosure when the event or condition have been identified but not material uncertainty exist। क्या बोल रहा है कि हमने कुछ इवेंट और कंडीशन को तो आइडेंटिफाई किया है कि जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो वहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा, if the event or condition have been identified that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, but based on the audit evidence obtained, the auditor concludes that no material uncertainty exists, the auditor shall evaluate whether in the view of the requirement of the applicable FRF, the financial statement provide a adequate disclosure about these event or conditions. Okay. अभी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पढ़ा ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे में, तो एक तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट था और दूसरा रिपोर्टिंग था। तो अभी हम रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट। जो मैनेजमेंट यूज कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो इनअप्रोप्रिएट है। सो यहाँ पे ऑडिटर को एक्सप्रेस करना चाहिए एडवर्स ओपिनियन। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बट इन द ऑडिटर जजमेंट मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन। ओके, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोला है। देखिए यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग है वो तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी देखिए क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने,
और या फिर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये दो पार्ट में आंसर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या करने का, इफ द एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड a separate section under the heading material uncertainty relating to going concern to draw the attention to note in the financial statement that the disclosure the matters, okay, and state that this event or condition indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and that the auditor's opinion is not modified in respect of the matter। तो देखिए सबसे पहले क्या था, एडिक्वेट डिस्क्लोजर मारा गया है तो अपने को अनमोडिफाइड ओपिनियन देने का और अपने को सेपरेट एक सेक्शन इंक्लूड करने का अपने ऑडिट रिपोर्ट में। सेक्शन का क्या नाम रहेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन द गोइंग कंसर्न। और इसमें हम क्या, ये हम लोग क्यों किए हैं, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उस नोट पे जो मैनेजमेंट ने डाला है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके। दूसरा, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अभी क्या किया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में, और जो मैनेजमेंट है उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं मारा है। तो क्या करने का, देखिए, इफ अ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद SS 705। तो अगर जो ऐसा सिचुएशन है कि डिस्क्लोजर नहीं मारा है तो जैसा ऑडिटर को अच्छा लगे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ इम्पैक्ट, ऑडिटर क्या करेगा 705 के हिसाब से रिपोर्ट को या तो क्वालिफाइड कर देगा या तो डिस्क्लेमर दे देगा ओपिनियन या फिर एडवर्स देगा। इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या हो सकता है, या तो क्वालिफाइड हो सकता है या तो डिस्क्लेमर हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा अपने को डालना पड़ेगा। तो उस पर उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, वो पैरा स्टेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे काज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, ओके। तो जब इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो अपने को क्या करने का, तो सबसे पहली बात तो अपने को एक्सप्रेस करने का क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, उसके बाद से अपने को बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में भी उसके रिस्पेक्ट में बात कर देने का। अभी देखिए क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैं गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करूंगा, या फिर एक बार असेसमेंट कर दिया मैं उसी पे आगे बढ़ता रहूंगा। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, देखिए, इफ द मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट when requested to do so by the auditor shall consider the implication for the auditor's report। तो इसका ऑडिटर क्या करेगा, इम्प्लीकेशन देखेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में कि हम क्या कर सकते हैं ऑडिटर रिपोर्ट में एज पर 705, ओके। कम्युनिकेशन विद TCWG, अगला पॉइंट। सो देखो, अनलेस ऑल द TCWG आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द एंटिटीज द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द TCWG event or condition identified that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Such communication with TCWG shall include the following। देखिए क्या क्या इंक्लूड होएगा, whether the event or condition constitute a material uncertainty, whether the management use of the going concern basis of accounting is appropriate in the performance of the preparation of the financial statement, whether adequate of the related disclosure in the financial statement, ठीक है ना, where applicable the implication for the auditor's report, ठीक है। significant delay in the approval of financial statement, so ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा रीजन कि क्यों भाई इतना डिले कर रहा है। आगे क्या करेगा ऑडिटर, देखो, इफ द ऑडिटर बिलीव दैट द डिले कुड बी रिलेटेड टू द इवेंट और कंडीशन रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट the auditor shall perform the additional audit procedure necessary as well as consider the effect on the auditor's conclusion regarding the existence of material uncertainty, okay। अगला पॉइंट, event or condition that may cast doubt on the entity's ability to continue as a going concern, okay।
सो देखिए, सबसे पहले एक तो फिनेंशियल है, दूसरा ऑपरेटिंग है, तीसरा अदर्स है। तो फिनेंशियल्स में क्या क्या आता है देखो, तो क्या फिनेंशियल निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, तो नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन है अपने बिजनेस का, फिक्स टर्म बोरोइंग अप्रोच मैच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिन्यूअल, तो फिक्स टर्म अपने को मैच्योर करना है और उसका कुछ रिन्यूअल नहीं आ रहा है। इंडिकेटर ऑफ विड्रॉवल ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रेडिटर्स, देन निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटिंग बाय द हिस्टोरिकल और द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो है हमारे, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है, अरियर्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड है, हमने डिविडेंड नहीं दिया है, inability to pay the creditor on the due dates, inability to comply with the terms of the loan agreement, changes from the creditor to cash on delivery, changes from the credit to cash on delivery transaction with the suppliers, inability to obtain the financing for the essential new product development और essential investments। ओके, ऑपरेटिंग में देखिए क्या क्या हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ऑपरेशन, loss of key management without replacement, loss of the major market, key customers, franchisee license or the principal support suppliers, labor difficulties, shortage of the important supplies, emerging of the high successful competitors। तो ये सभी ऑपरेटिंग थे। अदर्स में क्या आ सकता है देखिए, नॉन कंप्लायंस विद द कैपिटल और द अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, pending legal or regulatory proceedings against the entities that may, if the successful, result in the claim that entity is unlikely to be able to satisfy। okay, change in the law or regulations or the government policy expect to adversely affect the entity, uninsured or underinsured catastrophe when they occurs। okay, तो ये हमारा हुआ गोइंग कंसर्न SF 570।